नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम देखने वाले हिमोहिम की टेस्टोमनी, वो भी भारत की, हमारे वेस्ट बंगाल के, बंगाल में रहने वाले एक बंगाली कपल की टेस्टोमनी है। हिमोहिम पे उनको कैसे काम किया, हिमोहिम ने उन पे कैसे काम किया, ठीक है, ये हम आज देखने वाले। फिर से भारत की टेस्टोमनी आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम देखने वाले भारत की टेस्टोमनी ऑफ हिमोहिम ऑन कोविड एंड ब्रेन स्ट्रोक। कोविड के प्रॉब्लम में, जब कोविड उनको हुआ था और उसके बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो गया था, उसके ऊपर इनके जो देवर थे इन्होंने इनको हिमोहिम के बारे में बताया था। तो कोविड 19 को तो काफ़ी दिन हो गए, अभी चालू भी है वैसे, लेकिन थोड़ा सा प्रमाण कम हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसके कारण लॉकडाउन लगा था, आप भी जानते। तो कोविड 19 में बहुत से लोगों को ब्रेन स्ट्रोक डेवलप हुआ था। 0.9% से 23% रोगियों में ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दिए थे या विकसित हुआ था। हम बोले गंभीर रूप से प्रभावित जो कोविड 19 के जो रोगी थे उनमें शुरू में स्ट्रोक के लक्षण विकसित हुए और बाद में मल्टी ऑर्गन पे उनको स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दिए गए, ठीक है। ये कोविड 19 जब चालू था तब की सिचुएशन थी, ठीक। खैर अब देखते हैं टेस्टोमनी जो बंगला भाषा के अंदर में। वैसे तो हम लोग इस देश में रहते हैं, अलग अलग भाषाएं के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषा बोली जाती है और कुछ भाषाएं हम थोड़ा सा सुन के, बार बार सुन के उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप भी इसको समझ सकते हैं बंगला भाषा को, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इसका हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला ही हूँ। तो पहले आपको ये टेस्टोमनी देखनी चाहिए, तो ये देखिए टेस्टोमनी। আমরা আজকে এসেছি আমাদের প্রদীপ বিশ্বাসের বাড়িতে। প্রদীপদার ভাই রিসেন্ট দুরারোগ্যে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আমরা ওনার কাছে শুনবো কি হয়েছিল এবং বর্তমানে কেমন আছেন। প্রদীপদার মিসেস শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস, বৌদি আপনি হিমোহিমটা ধরে আছেন, এটা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। প্রথমে বলি, আমি শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস, বাড়ি মালদা 2 নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি। আমি অ্যাটমি কোম্পানি সম্পর্কে আমাদের অমিত বিশ্বাসের কাছে অনেক শুনেছি, তারপরে আমি গুগল সার্চ করি এবং অ্যাটমি নিয়ে বিশদে জানতে পারি। তো ইতিমধ্যে আমার দেওর গত 1.5 মাস আগে যখন মালদায় করোনার সেকেন্ড ওয়েভ স্টার্ট হলো, মালদা ভীষণভাবে এফেক্টেড হলো, তখন আমার দেওর করোনাতে অ্যাটাক হলো। তার আগে ওর একটা নিউরো প্রবলেম ছিল, ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল। আবার সেকেন্ড টাইমও করোনার ঠিক আগে ও সেন্সলেস হয়ে যায়। তারপর নার্সিংহোমে ভর্তি করার পরে করোনার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপরে নার্সিংহোমে 17 দিন থাকার পরে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বলল যে নিয়ে চলে যান বাড়িতে, অক্সিজেন স্টার্ট করুন। অক্সিজেন স্টার্ট মানে অক্সিজেন এমন অবস্থা যে কিছুতেই খোলা যায় না। এমন একটা সময় আসলো যখন ডাক্তার বলল যে একেবারে লাস্ট অবস্থার জন্য এখন ওয়েট অ্যান্ড সি। এই অবস্থাতে আমরা একরকম জোর করে হিমোহিম নেই, লঞ্চ করেনি, তা সত্ত্বেও আমাদের অমিত বিশ্বাস কিভাবে যে এই হিমোহিমকে আনিয়েছেন গড নোজ। তো হিমোহিমটা আমাদের হাতে এসে পৌঁছলো অবশেষে এবং আমরা স্টার্ট করলাম। 9 দিনের মাথা থেকে আমরা রেজাল্ট পেতে শুরু করলাম। যে দেওর একেবারে শয্যাশায়ী, কোমর থেকে পা পর্যন্ত অসাড়, এমন কাশি যে কাশি 4টে বাড়ি ক্রস করে সেই কাশির সাউন্ড পৌঁছায়, আর কন্টিনিউয়াস মুখে ওরে বাবারে ওরে মারে, এই শব্দে বাড়ির সুস্থ লোকেরাও অতিষ্ঠ হয়ে গেছে, এমন একটা অবস্থা। সেই অবস্থাতে হিমোহিম 9 দিনের দিন থেকে রেজাল্ট দিতে শুরু করলো। যে ও বাথরুমে গেলে যে কষ্টটা হতো, সেই কষ্টটা আস্তে আস্তে রিমুভ হলো। তারপরে অক্সিজেনটা আর লাগলো না। চেস্ট ফিজিওথেরাপিস্ট বাড়িতে আসতো চেস্ট ফিজিওথেরাপি করতে, তাকেও বিদায় করা হলো। এবার বাকিটা আমার দেওরের মুখে শুনুন। দাদা আপনার নামটা একটু বলেন। উনি আবেগে কেঁদে ফেলেছেন। অ্যাকচুয়ালি ডাক্তাররা যেভাবে বলেছিল তাতে উনি আবার নতুন জীবন পেয়েছেন, যার জন্য আবেগটা ধরে রাখতে পারলেন না। নমস্কার, আমি প্রণয় বিশ্বাস। আমি যেভাবে সুস্থ
বলা যাবে না এখন আস্তে আস্তে একটু থেমে নিন। আস্তে আস্তে একটু অফ করে তারপর এই বিশ্বাস আমার দুর্নব করেনি। আমি কি নাম? হিমোহিম। হিমোহিম। যেন কবিতা দেন। হিমোহিমকে আমি পুরোপুরি ডেভেলপ, পুরোপুরি সুস্থ হয়েছি। আমার যে অবস্থা হয়ে গেছিল সেটা আমার ভাষায় বলা যাবে না। ঠিক আছে, আপনি এখন অনেকটাই সুস্থ। অনেক অনেক মানে পুরোপুরি সুস্থ। আপনি আপনার ব্রেন স্ট্রোক হয়েছিল নাকি? হ্যাঁ, দুবার হয়েছে। দুবার হয়েছে। তো এবার আপনি নার্সিং হোমে কতদিন ছিলেন? 17 দিন। 17 দিন। আচ্ছা, তাতে বিল হয়েছে কত? 4 লাখ টাকা। 4 লাখ। আপনি 4 লাখ টাকা খরচ করে যেটা উপকার পেলেন সেটা বেশি উপকার পেলেন না এই? তার চেয়ে অনেক বেশি এই জানেন? তার থেকে অনেক বেশি হিমোহিম পেলাম। তার থেকে অনেক বেশি এই হিমোহিমটাতে হিমোহিম পেলাম। হিমোহিমে উপকার পেয়েছেন। আপনারা এখন চলাফেরা করতে পারছেন? অনেক অনেক। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনি মানুষের উদ্দেশ্যে এই হিমোহিম সম্পর্কে কি বলবেন? আমি তো সবাইকে বলবো খাওয়ার জন্য। যারা অসুস্থ খুব? সবাইকে বলবো, যারা অসুস্থ তাদের সবাইকে বলবো একবার খেয়ে টেস্ট করে দেখুন, তাহলে ওরা রেজাল্ট হ্যাঁ। পাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার সুস্থ জীবন কামনা করি আমরা, আরো সুস্থ হয়ে ওঠেন। আর মানুষের সঙ্গে শুধু এটাই গল্প করবেন যে হিমোহিমটা কি, হিমোহিমটা খাওয়া কেন প্রয়োজন। কারণ কোনো ওষুধ নয়। হিমোহিম অ্যাকচুয়ালি কোনো ওষুধ নয়, এটা একটা খাবার। খাবারে মানুষ সুস্থ থাকে। হিমোহিম খেয়ে যারা দীর্ঘদিনের অসুস্থ রোগী, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, আপনার কি মনে হচ্ছে তারা সব সুস্থ হয়ে যাবে, সুস্থ হয়ে যাবে? 100%। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने टेस्टोमनी देख लिए होंगे, इस वीडियो को देख लिए होंगे। बहुत ही अलग तरह का वीडियो है। हमारे भी आंख में आंसू आ जाते जब वो अंकल रोते हैं, तब उनको देख के हमारे आंख में भी आंसू आ जाते। ठीक है, तो चलिए मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। इनका नाम है विश्वास और ये उनकी धर्म पत्नी है। इनके देवर ने इनको हिमोहिम के बारे में बताया था। मिस्टर विश्वास को कोविड हुआ था, वे उससे ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद उनको ब्रेन का अटैक आ गया। आप समझ सकते हैं, ब्रेन का अटैक यानी ब्रेन के अंदर में क्लॉटेस जमा हो जाते हैं। ठीक है, और उनको उस कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और फिर से जब कोविड की जांच हुई, दोबारा उनको कोविड पॉजिटिव वो पाए गए और सांस लेने में उनको तकलीफ होने लगी। सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उनको ऑक्सीजन लगाया था। और आप समझ सकते हो, जब पेशेंट को ऑक्सीजन लगाया जाए तो कितनी क्रिटिकल कंडीशन होंगी पेशेंट की। उनको आईसीयू में भी एडमिट किया था। अप्रॉक्स 17 दिन हॉस्पिटल में वो एडमिट रहने के बाद उनको डॉक्टर ने, उनके फैमिली को डॉक्टर ने बोल दिया था, जवाब दे दिया था, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, आप इनको घर ले जाए। डॉक्टर ने 17 दिन बाद बोल दिया था। ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनको एडमिट किया था, पहले कोविड से ठीक हो गए थे, घर आ गए थे, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। ब्रेन स्ट्रोक आने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट किया, हॉस्पिटल में एडमिट करने के कारण कोविड की टेस्ट हुई। ये बीच में चलता था, हर कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद कोविड की टेस्ट होती थी। फिर से कोविड पॉजिटिव दिखे गए। कोविड पॉजिटिव होने के कारण उनको ऑक्सीजन की तकलीफ होने लगी, सांस लेने में तकलीफ हुई, तो उनको ऑक्सीजन लगाया गया था। ऑक्सीजन लगा दिया। 17 दिन बाद डॉक्टर बोलते हैं हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इनको हम बचा नहीं सकते। डॉक्टर ये शब्द में कहते हैं और बोलते हैं आप इनको घर लेके जाओ। उनका हॉस्पिटल का बिल लगभग अप्रॉक्स 4 लाख रुपए के ऊपर हो गया था, या 4 लाख रुपए मान लेते हैं हो गया था। उस टाइम उनके देवर ने उनको हिमोहिम लेने के लिए बोला। इनके जो देवर थे, इनके जो भाई बोले हम, उन्होंने इनको बोला कि आप हिमोहिम तो ट्राई कीजिए। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दीजिए, खड़े कर दिए हैं, सब कुछ हो चुका है, डॉक्टर ने भी उम्मीद छोड़ दी है। एक आखिरी उम्मीद हिमोहिम तो है, हिमोहिम तो ट्राई कीजिए। उनके देवर ने उनको बोला आप हिमोहिम ट्राई कीजिए। उस टाइम हिमोहिम भारत में उपलब्ध नहीं था, इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं था, लेकिन उनके देवर ने कहीं ना कहीं से अरेंज करके दिया। कहीं से भी जो लोग बुलाते थे हिमोहिम बाहर से, कोरिया से, उनके पास था, उनसे उन्होंने उनको अवेलेबल करवा दिया, अरेंज करवा दिया। और 9 दिन में चमत्कार देखने मिला।
9 दिन के अंदर में जो चमत्कार हुआ ना, वो ऐसा चमत्कार था जहां डॉक्टर ने बोल दिया था इनको घर ले जाओ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में, हम इनको बचा नहीं सकते। वहां हीमोहिम ने उनको रिजल्ट दिखाना चालू किया और आज आप देख रहे होंगे वीडियो में वो पूरी तरह से स्वस्थ है। सिर्फ 9 दिन हीमोहिम लेने से जो पेशेंट को डॉक्टर ने बोल दिया था हम इनको बचा नहीं सकते, हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, उस पेशेंट पे हीमोहिम ने अपना जादू दिखा दिया था। ब्रेन का स्ट्रोक आया था, साथ ही साथ कोविड पॉजिटिव थे, उस सांस लेने में तकलीफ थी। इस कंडीशन में भी, जिस कंडीशन में डॉक्टर ने बोल दिया था हम कुछ नहीं कर सकते, उस कंडीशन में भी हीमोहिम ने अपना काम कर दिया था। ठीक है, आपने देखा होगा मिस्टर विश्वास का फीलिंग, आखिरी में आप देख रहे होंगे उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। वैसे देखा जाए तो दुख के आंसू नहीं थे, वो सुख के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। उनको हीमोहिम को बार बार वो देख रहे थे क्योंकि वो हीमोहिम ने उनकी जान बचाई थी, तो ये खुशी के आंसू थे उनके लिए। तो हीमोहिम किसी की जान बचाने में डेफिनेटली मदद कर सकता है। जब डॉक्टर ने हाथ बोल दिया, हाथ खड़े कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार हीमोहिम तो ट्राई कीजिए। जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, उस कंडीशन में भी आपको हीमोहिम मदद कर सकता है। फिर से एक बात कहता हूं, उस कंडीशन में आपको हीमोहिम मदद कर सकता है, लेकिन आपकी जो जिंदगी की रस्सी है ना, वो सिर्फ लंबी चाहिए। अगर जिंदगी की रस्सी आपकी थोड़ी सी कटी हुई होंगी, उसी दिन तक आप जिंदा रहने वाले, तो उस कंडीशन में हीमोहिम भी आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जिंदगी की लकीर लंबी है, उस कंडीशन में आपको हीमोहिम मदद करेगा। जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, उस पीरियड में भी आपको हीमोहिम मदद करने वाला है। तो आपको हीमोहिम एक बार ट्राई करना चाहिए। 15,000 रुपए में अगर किसी की जान बच रही है तो 15,000 रुपए जान से बढ़कर तो नहीं है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को, ये टेस्टोमनी हमारे भारत की है, सबसे पहले बात बोल दूं आपको, ये टेस्टोमनी कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और उस हीमोहिम के लिए तो भी, जिसने इनकी जान बचाई है, उसके लिए तो हमको धन्यवाद अदा करना चाहिए उस हीमोहिम का, जिसने हीमोहिम बनाया और जिन्होंने हीमोहिम को भारत में लाया लोगों की जान बचाने के लिए। उसके लिए उस हीमोहिम को दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, दिल से नमस्कार करता हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो लोगों तक पहुँचाए। जिस किसी को भी तकलीफ है, जिस किसी को भी ज़रूरत है, अगर वो हीमोहिम टाइम पे ले, हो सकता है आप उसकी जान बचाने में मदद कर दो। तो ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपके पास पहुंचते रहे। नमस्कार, जय श्री राम।